Hello, students, and welcome back to Geography class for Standard 10. After the unit test, we are going to start about the terminal studies. So, whatever we have read in the first term or first unit test, so you're free to ask any question regarding you have. You can leave your questions in the chat box when we are going for online classes, or you can ask the questions in my WhatsApp number also, but be sure that you understand each and everything. So today we are going to read about the next chapter, that is mineral and energy resources, chapter 8. Now let's understand the meaning of mineral first of all. What does mineral mean by? A mineral is an aggregate of two or more than two elements. Two or more than two elements. Mineral has a definite chemical composition and is found by inorganic processes. So students, you understand the meaning of inorganic. You have read in the previous classes with inorganic and organic processes. Chemical composition, you understand the meaning of that. So this is the definition, that what do you mean by the mineral? You must write these intact words. Types of minerals, basically there are two types, metallic and non-metallic. Now what are the metallic minerals? Directly if we reach, they are iron ore, manganese, nickel and copper. From the name only we can understand, from word metal becomes metallic. So they are found in the igneous rocks and they are useful for metallurgical industry. What is the meaning of metallurgical? Again, if you read the first word, that is metal. So from metal word comes metallurgical, the industries which are based on metal like iron or copper, steel, aluminium, manganese and all that. The other type is non-metallic minerals. What are the non-metallic minerals? They are found in sedimentary rocks. Read about igneous rocks and sedimentary rocks. These are mica, limestone, gypsum. They are not metals, so they are non-metallic minerals. मिनरल्स आर नॉन रीन्यूएबल. ये दोबारा नहीं बन सकते, एक बार खत्म हो गए तो खत्म. दे आर एग्जॉस्टिबल, एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे. इट इज नॉट इजी टू रिप्लेस देम. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ मिनरल्स. आयरन ओर, अब ये आयरन ओर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ आयरन ओर. सबसे पहले आयरन ओर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहा हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. हमारी लाइफ में यूजेबल चीजों में से मेरे ख्याल से मोर देन 50% लोहे की बनी होती है, स्टील की बनी होती है. आयरन ओर इज द बैकबोन. बैकबोन समझते हो, रीढ़ की हड्डी ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. आज की कोई भी इंडस्ट्री आयरन के बिना नहीं चलती. The economic growth of a country is judged by its consumption of iron. किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके पैसे धेले या उसके आर्थिक जो विकास है वो आयरन की कंजम्पशन पे होता है. आयरन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयरन ओर एंड कंटेन्स वेरिंग परसेंटेज ऑफ आयरन. अकॉर्डिंगली देयर आर फ्यू वैरायटीज ऑफ आयरन ओर फाउंड. कौन कौन से आयरन ओर मिलते हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, साइड्राइट. ये चार किस्म का लोहा मिलता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटाइट. 72% प्योर आयरन होता है इसमें. हेमेटाइट में 70%, लेमोनाइट में 60% और साइड्राइट में 40%. अब इनके जब व्हेन वी रीड दिस पैराग्राफ वी कम टू नो अबाउट द क्वालिटीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स. प्योर आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटाइट पे. अब मैग्नेट से ही आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर ले. कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका. हेमेटाइट कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. ये सब चीजें आप व्हेन यू गो थ्रू द रीडिंग यू अंडरस्टैंड. सो यूजेस ऑफ आयरन ओर. यूज कहाँ होता है? पिग आयरन, स्पॉन्ज आयरन एंड स्टील. Iron is used mainly for making pig iron, sponge iron, steel. ये न्यू वर्ड्स हैं, इनको अंडरलाइन रखना, एग्जाम में काम आएंगे आपके. The iron and steel together are largest manufactured products in the world. It is used widely in construction of roads, railways, appliances, building machines, tools, and automobiles.
नाउ वी हैव अ मैप। मैप में क्या उन्होंने कहा हुआ है, ये देखिए। आयरन ओर कहाँ मिलता है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कहाँ, कौन कौन सी जगह पर, कौन कौन सी स्टेट्स हैं। और ये ब्लू डॉट्स बताते हैं कि ये जगह पर आयरन ओर मिलता है। देखिए ज़्यादातर ये है साउथ इंडिया। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया कहाँ मिलता है? कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, जो अभी हमने मैप में देखा, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला एंड ऑल दैट। नंबर 2 पे आता है मैंगनीज। पहला है आयरन ओर, दूसरा है मैंगनीज। अब फिर से वही चीजें पढ़ेंगे कि इनके यूजेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगनीज क्या है, कहाँ कहाँ मिलता है और कौन कौन सी स्टेट में ये मिलता है। और तीसरे नंबर पर आता है बॉक्साइट। तीन चीजें पढ़ ली हमने, आयरन ओर, मैंगनीज और थर्ड है बॉक्साइट। फिर से वही चीजें कि इसके यूजेस क्या होते हैं। इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम। इट इज अ रॉक कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो यूजेस कहाँ किसके, बॉक्साइट के। बॉक्साइट के यूजेस हैं making aircrafts, ships, utensils extension. It is used in electrical industry for its good conductivity. ये है बॉक्साइट। और नंबर 4 पर आता है हमारा कॉपर, जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में यूज होता है। इट इज हाईली डक्टाइल, मतलब एबल टू ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। उसको आप स्ट्रेच करके पतली से ब्रिक आप घरों में जो वायर्स देखते हैं, जो हल्की फुल्की पंखे की तारें होते हैं, जब आप उनको पील आउट करते हैं तो उनमें से ब्रिक ब्रिक तारें कॉपर की निकलती हैं। तो ये कॉपर की क्वालिटी है कि आप इनको थिन से थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये गुड कंडक्टर होती है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बड़ी जल्दी पास होती है। और डक्टिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर झेल सकती हैं, तो कॉपर इज वेरी यूजफुल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर इंडिया में क्या है, तारेगांव इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा नाम जो निकल के सबसे पहले आता है। मध्य प्रदेश इज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। उसके बाद राजस्थान, उसमें ये सब नेम्स हैं। और ये झारखंड भी बात आती है। और यहाँ पर मैप है, मैप में क्लियर है कि आप कहाँ पर पढ़ेंगे। ये देखिए कॉपर, मध्य प्रदेश, तारेगांव एरिया, राजस्थान, झारखंड, और ये सब चीज़ें यहाँ पर ट्रायंगल्स में शो की गई है। मैप की तैयारी भी साथ के साथ हो जाएगी। और उसके बाद कंटेंट एनालाइज इन ब्रीफ में कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। इस लेसन में हम लोगों ने जो बेसिकली पढ़ा है वो है आयरन ओर, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड कॉपर। और इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो भी आपको वैसे तो मिल जाएंगे, बट इफ़ यू नीड टू फाइंड द आंसर्स आई विल डेफिनेटली सेंड इट टू यू। रिकॉर्डेड वीडियोस में भी मिलेंगे और ऑनलाइन क्लासेस में भी मिलेंगे। और मैं ये आंसर्स आपको वैसे भी लिख के भी दे सकता हूँ। और ये आंसर्स आप ट्राई टू फाइंड इट आउट। और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, मिनरल एंड रिसोर्सेज, चैप्टर 9। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।